व्योमवद्व्याप्तितोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swami Narayan and my Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami, my heartiest namaskar, heartiest good morning, especially to the President, Shri Mahesh Bhai, the Project Coordinator, Yatin Bhai, and all the committee members of Rotary Club Ishania, Rotarians, sitting guests, and why to forget one of the elders of BAPS family here in Nagpur, Dilip Bhai Kamdar. Nice to be with you after an occasion that happened to the BAPS family. Just about a week back, our loving Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj left for his heavenly abode. It was a time of severe grief. It was a time of severe shock. And at one moment, the organizers here also felt that probably we would not be able to continue with the program. And when they called me, I said, I have lived for 30 years with Pramukh Swami Maharaj. I know his thoughts and feelings. He would be more happy if I keep my commitment with you. I knew he liked this. I knew he liked this. So I'm here with you. Of course, it's a bit heavy heart still. But then, the mission and the zeal for the betterment of humanity that Pramukh Swami Maharaj always carried with him should always take the center place. Coming to the topic, I've been given, let's celebrate our existence. Astitva ka anand, Astitva ka utsav. We have all got a human life which is around about like 70 to 80 years of existence upon this earth. ये 70 या 80 साल का जीवन है, 5-10 plus minus with the grace of God. We want to celebrate our existence. We want to live a human life in a way that when we are on our deathbed, towards the last years, towards the last months, and towards the last days of our life, we can put our hand on our chest and say, yes, I lived my life. I lived up to the grace and expectation of the Almighty. If you want to have that feeling towards the end of your life, each and every moment right from today, it counts. हर एक पल कीमती है, हर पल महत्वपूर्ण है। ये एक मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। First of all, think of this human body, this precious human body that we have got. You might just say, fine. But when you go through the details of each and every organ that we have, you feel that this is very precious. An American scientist has put the price tag on this human body, a lifeless human body, at $5 trillion. Hamara hriday, our heart, it beats. You might be surprised to know that in an average lifespan of like about 60 to 65 years,
This human heart, it pumps more than 500 million liters of blood. Can you imagine of such a machine? You would be surprised to know that if a drop of blood, it comes out from the heart, normally the roots are fixed. The blood goes into the hand and it comes back, it goes into the leg and it comes back, it goes into the head and it comes back. But just we imagine that if a drop of blood coming out of heart and it passes through all the blood carrying vessels, all the arteries and all the veins, and comes back to the heart, which normally does not happen. We just imagine that a drop of blood, if it passes through all the blood carrying vessels of the entire human body, an average of 5 feet 5 inch height, how much distance does it travel? 60,000 kilometers. 60,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग होता है एक बूंद जो हृदय से निकलता है और सब ब्लड कैरिंग वेसल्स में से अगर पसार होकर अगर वापस आया, it travels in an average human height of like 5 feet 5 inches to 60,000 kilometers. आश्चर्य है ना? आपका लीवर है जो केमिकल्स बनाता है. मुझे कहा गया है कि आप हिंदी और अंग्रेजी मिक्स रखना. आपका लीवर है जो केमिकल्स बनाता है. आपका दिन पूरा करने के लिए लीवर को 500 से भी ज्यादा प्रकार के केमिकल्स बनाने पड़ते हैं. ओनली देन यू सी द इवनिंग. गिव मी वन फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, rather a chemical factory in the world which produces 500 different types of chemicals every day. है कोई? दुनिया की सबसे प्रसिद्ध केमिकल फैक्ट्री डॉ केमिकल्स यूएस में, ह्यूस्टन में, जो हमारा मंदिर है उससे थोड़े ही मील दूर है. दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल उत्पादन करने वाली फैक्ट्री, वहां मैक्सिमम 20 प्रकार के केमिकल्स रोज बनते हैं. क्वांटिटी बड़ी होगी लेकिन द टाइप इज ओनली 20. A liver makes more than 500 different types of chemicals to complete your day and thus your life. छोटा सा है, इतना है लीवर. इतनी छोटी सी फैक्ट्री में 500 प्रकार के केमिकल्स बनते हैं. हम रोटी खाते हैं तो भी बनते हैं, पश्चिम वाले ब्रेड खाते हैं तो भी बनता है. भगवान का आश्चर्य है. अब किडनी ले लो, 2 किडनी है. ईच किडनी कंटेन्स 1 लाख फिल्टर्स. एक फिल्टर में से पानी पास हो गया तो भी हमको प्रतीति आ जाती है, विश्वास आ जाता है कि यह परिशुद्ध हो गया और पी लेते हैं. 1 लाख फिल्टर है एक किडनी में. ह्यूमन बॉडी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए बड़ी आश्चर्य की बात है. पागल बन जाएंगे अभी तो. Not even 10% they know about the human body. तो ये रचना, ये प्रेशियस ह्यूमन बॉडी, आप 5-10 हजार की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो उसके साथ मैन्युअल आता है कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाए. तो ये इतना कीमती मनुष्य शरीर, उसका कुछ मैन्युअल तो होना चाहिए ना. वो मैन्युअल के मुताबिक चले तो यू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस. बिना मैन्युअल के आप चलो तो आप एक 5-10 हजार के आइटम को भी बिगाड़ देते हो. एक वॉशिंग मशीन लेते हो तो भी मैन्युअल आता है. आता है कि नहीं? तो दिस प्रेशियस ह्यूमन बॉडी, द अमेरिकन साइंटिस्ट सेड इट्स अ लाइफलेस ह्यूमन बॉडी इज $5 ट्रिलियन. उसमें लाइफ तो है ही नहीं है. अगर उसमें लाइफ है तो उसकी कीमत क्या है? They say, if you live for 100 years upon this earth and a lifeless human body is $5 trillion, your every second is $500,000. आप करोड़पति हो. आप नहीं मानते हो, आप हो. Every second of yours upon this earth, monetary wise, it is $500,000. That is $5 lakh. कितना कीमती शरीर लेके हम घूमते हैं.
इफ यू वांट टू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द मैन्यूल। और वो मैन्यूल है क्या? हमारे महान ऋषि मुनियों ने ये मैन्यूल दिया है। मनुस्मृति है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, श्री रामायण है। ये ग्रंथ हमको पुराने लगते हैं। इट इज सो रेलेवेंट टुडे। द स्टोरीज एंड एपिक्स ऑफ इट आर टॉट इन द टॉप बी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, इन द टॉप मैनेजमेंट कोर्सेज अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका। प्रिंसिपल्स फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवत आर वेल टॉट। ये हमारा मैन्यूल है। मैं आपको दावे के साथ एक बात कर सकता हूं कि आपके जीवन में जो भी प्रसंग आज तक बने हैं, बन रहे हैं और भविष्य में बनेंगे, वही प्रसंग रामायण और महाभारत में बन गया है। अगर आपने अच्छी तरह से वो दोनों ग्रंथ पढ़े हैं तो आपको रेलेवेंस आएगा कि ये प्रसंग मेरे जीवन में बना, ये रामायण में यहां बना था। तो उस वक्त आपको किस प्रकार की विचारधारा रखनी है, भावनाएं क्या रखनी है, वो आपको सीधा मार्गदर्शन मिल जाएगा। पहले तो आपको यह पता चल जाएगा मार्गदर्शन से पहले कि ये प्रसंग बना है, उसमें मैं दशरथ हूं, राम हूं, कैकेयी हूं या मंथरा हूं। इतना तो जल्दी पता चल जाएगा पहले। मैन्यूल्स, तो दे आर सो रेलेवेंट टुडे। तो इस ग्रंथों से और आधुनिक विचारों से जो सद्गुण की बातें की गई है उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, ये सभी महान ग्रंथ और आधुनिक विचारधारा में भी जो महान चिंतक हैं डिफरेंट फील्ड्स में, बीट सोशल फील्ड, बीट द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बीट द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड बीट द फील्ड ऑफ त्यागाश्रम, सबसे पहली बात इस मैन्यूल्स में, इस ग्रंथ में और आधुनिक विचारधारा में यह है कि जीवन में एक अच्छा स्वप्न होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ गुड ड्रीम इन योर लाइफ, अ ड्रीम इन द फॉर्म ऑफ अ गोल। ये करना है, यहां तक पहुंचना है, ये एक मकसद जीवन में जरूर तैयार करना है। अदरवाइज यू वेक अप इन द मॉर्निंग गोललेस एंड thus pathless। जीवन में मकसद नहीं है तो रास्ता भी नहीं है। सुबह आप उठेंगे, करेंगे जो दिन में आएगा सामने, नहीं, नक्की करके सोना है, नक्की करके उठना है कि इतना करना ही है। अ ड्रीम is the first and the foremost thing that the scriptures, the preachers, the modern day thinkers, the preachers. You talk of the top management gurus of the world who charge $50,000 for 1 hour of talking, who charge $70,000 for 1 hour of talking, who perhaps many of them charge for $100,000 for 1 hour of talking. Og Mandino है, कैन ब्लैंचार्ड है, रिचर्ड ब्लैंचार्ड है, फिर जिम कॉलिंस हैं। ये सब $50,000 to $70,000 पर आवर चार्ज करते हैं। मैंने आपको चार्ज बता दिया, आपको कभी यहां ईशान्य में बुलाना है तो। व्हाट मस्ट दे बी टॉकिंग? पहली बात यह करते हैं कि एक अच्छा स्वप्न होना चाहिए, अ ड्रीम वेर आई वॉन्ट टू रीच। आप में कहीं लोग, यहां कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक हाथ में पेन लेके, एक कागज का टुकड़ा लेके उसमें अपना सपना लिखा है, बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू अचीव दिस। ये लिखा है, वो उंगली ऊंची करे। Raise your fingers if you've taken a pen at some moment in your life and written down somewhere in one line or a couple of lines that I want to achieve this, I want to be this, I want to go at this place before I die. Raise your hands. है 3-5 लोग। आज ये सेशन पूरा हो, घर जाके ये लिखना।
बिजनेस वाइज कहां पहुंचना है, सोशल रिलेशनशिप्स में कहां पहुंचना है, जीवन में मोरालिटीज कहां पहुंचना है, जीवन में स्पिरिचुअलिटीज कहां पहुंचना है, ये थोड़ा लिखना, पेस्ट इट समवेयर, so you get reminded of it again and again throughout the day and your life. अमेरिका में एक छोटा सा लड़का था, 15 साल की उसकी उम्र थी, जॉन गॉडार्ड उसका नाम। उसने एक बार हाथ में पेन ली और एक कागज के टुकड़े पे लिखना चालू किया कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस। लिस्ट तो बना 106 आइटम्स का। फिर वो बच्चा ने जाके अपने माता पिता को दिखाया कि दिस इज द टू डू लिस्ट ऑफ लाइफ, इतना करना है। माता पिता ने बोला ठीक है, जितना हो सके प्रयत्न करना, जितना हो सके हम भी मदद रूप होंगे। और इस 105 आइटम्स में क्या क्या बात लिखी थी? एक लिखा था आई वॉन्ट टू स्विम द लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज नाइल अलोंग इट्स लेंथ, नॉट द ब्रेथ। दूसरी बात लिखी थी जॉन गॉडार्ड ने, द एज ऑफ 15 ही रोट आई वॉन्ट टू क्लाइंब द एवरेस्ट। तीसरी बात लिखी थी by a one-man pilot, I want to fly around the world. 105 एडवेंचरस आइटम्स थी। इसमें यह भी लिखा था वन डे आई वांट टू हेड अ $5 बिलियन मल्टीनेशनल कंपनी, यह भी लिखा था। उसमें यह भी लिखा था आई वांट टू मेक 1000 फ्रेंड्स इन माय लाइफ। उसमें यह भी लिखा था कि आई वॉन्ट टू एजुकेट 1000 ऑर्फन चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 15, यह सपना था। ही डिड गो आफ्टर इट, प्रयत्न किया। एट द एज ऑफ 59, when he was physically less capable of doing more things in life thereafter, he sat down quietly in his house again with the list. इसमें से कितना पूरा हुआ? He had completed 95 items out of 105. कुछ सपना तो होना चाहिए ना। कल सुबह उठ के क्या करना है, कुछ तो तैयार करके सो जाओ। उठेंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं उठने ही वाला है तो। Sometimes the most intellectual persons, I tell you, they don't know what to do on a rainy Sunday afternoon. इतवार है, दोपहर का समय है, अगर बारिश चालू हो गई तो क्या करें? घर में रहूं, बाहर रहूं, पढ़ूं, टीवी देखूं, क्या करूं? और देखना इतने बेचैन हो जाएंगे कि घर, ड्राइंग रूम से गैलरी और गैलरी से बेडरूम 1 घंटे में 5 बार घूमेंगे। देखना, you don't know what to do on a rainy Sunday afternoon. You sleep with a dream, you awake with a dream. When Sachin Tendulkar completed 20 years of international cricket, a special edition by the Times of India in Mumbai was carried out. Sachin was interviewed and he was asked the secret of his 20 years of success at the international level. And we know to give performance at the international level in any field for 20 years is a phenomenal achievement, because you require absolute physical fitness, you require tremendous mental toughness, and you require very high emotional balance. Yes or no? Physical fitness चाहिए, mental toughness चाहिए, emotional balance चाहिए. There is no retake there. Sachin makes one mistake facing a delivery and he's out. And when Brett Lee or Shoaib Akhtar and Alan Donald, they are bowling at 95 miles per hour, that is 145 kilometers per hour. After the ball gets released, Sachin Tendulkar has only 40th part of a second to judge and decide what to do with this ball. And 50,000 people clapping, millions watching me on TV.
He is carrying tremendous emotional pressure at that time. उस वक्त जो उनके अपने मानस पे जो इमोशनल प्रेशर है ना, उसका अनुभव हम में से किसी को नहीं है. Imagine a World Cup semi-final between India and Pakistan, and Sachin has to perform the next day under any circumstances. 100 million people watching me on TV, and they want him to perform, and he has to perform. Difficult, hai? And he is not supposed to do a single mistake. To carry these aspirations of millions, अगर बैटिंग करते वक्त घूम के देखता है पेविलियन में कहां से ज्यादा तालियां बजती हैं, तो यहां पूरा हो जाता है. एंड वी डोंट नो द क्वालिटी ऑफ द गेम एट दैट लेवल. हम लोग तो चौक से वो दीवार पे स्टंप ड्रॉ किए और छोटे से बैट से क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं. We don't know what is 95 miles per hour deliveries, and that too after the pitching. It cuts 2 to 2.5 feet, outswing, in swing. Sachin was asked, what is the secret of your 20 years of very good performance at international level? Sachin Tendulkar said, I not only play cricket, I walk cricket, I talk cricket, I eat cricket, I drink cricket, I sleep cricket, I wake up cricket. That can give you performance. You don't drink, wake up, walk, sleep, your goal, and so you don't reach at the highest level. People do that, and so they achieve the silver medal at the badminton at Olympics. People do that, dream everything in life. और हम तो सब उठ के सबसे पहले तो सोशल मीडिया खोलते हैं, because you are wanted by many people, isn't it? How many of you feel that the affairs of the Nagpur corporation would not run smoothly if you don't open up your social media in the morning? Sorry, I'm at the lower level. Let me go at the right level. How many of you feel that the PMO won't run properly without you if you don't open your social medias in the morning? Dilip is saying all of us, and that is why you're opening. Sachin Tendulkar said, I first face 500 deliveries in the morning, and then I touch my mobile phone. Principles, disciplines, only that gives you high level performances. सपना है, साथ में परसिवियरेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, समय देना पड़ता है. All of us know many things about 2G, 3G, 4G, cold scam, this and that. बहुत पढ़ा, बहुत टाइम निकाला. कितना उपयोग में आया? हाँ, 2-3 बार चर्चा की होगी, जिसका नाम बाहर आया उसको गाली भी 1-2 दे दी होगी. उससे ज्यादा कुछ काम में आया? You must think. हेडलाइंस पढ़ लेना, मैं भी पढ़ता हूं. Things that are not relevant to you, your dream, your goal and your life, don't give time to it. Because this is a 70 or 80-year game. You have to play it beautifully. Only then you celebrate your existence. You know you sleep 8 hours a day. You must be telling me that, Swamiji, I sleep 6 hours a day. Then when you were a child, you were sleeping 10 hours a day, and in your old age, you'll be sleeping 10 to 12 hours a day. In an average, every person sleeps for 8 hours a day during his entire lifetime. Out of 24 hours a day, 8 hours he sleeps. So 1/3 of the day he's sleeping. Straight equation, 1/3 of the life he will sleep. That means if you live upon this earth for 70 years, 70, your 23 years will go in bed, sleeping. You don't know whether you exist or not. कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर मैं 70 साल इस पृथ्वी पे रहूं, 70 years, मेरे 23 वर्ष
सोने में चले जाने वाले हैं. You brush for 3.5 minutes a day. Your good more than 100 days of life goes in brushing your teeth. Now I don't want to give you the figures of timings in front of the mirror, okay? The amount of time you must be spending in front of the mirror, देखना है, इस एंगल से देखना है, इस एंगल से देखना है, अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तकलीफ यह है कि एवरीबडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक्चुअली फील्स कि अगर 10% इंप्रूवमेंट होता ना तो आई वुड हैव बीन इन वन ऑफ द वुड्स. हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, फॉलीवुड, एनी ऑफ द वुड्स. अगर 10% कुछ भगवान ने शक्ल अच्छी कर दी होती, अगर कहीं को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही है, ये लोग मुझे जानते नहीं इसलिए बुलाते नहीं है, पहचानते नहीं है इसलिए मुझे वहां बुलाते नहीं. वरना मुंबई में, गोरेगांव में मुझे भी फिल्म सिटी में बुला लेते. Every person standing in front of the mirror always feels that I should get the title of the world. आगे जो भी हो, मिस, मिसेस, मिस, वो भी, जो भी कुछ. अब उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. What I mean to say is, if you want to celebrate your existence upon this earth, first have a goal and devote your entire time, energy, your money, everything towards reaching that aim and goal. Don't get diverted. In terms of time especially, वो बहुत कम है. समय नया पैदा हुआ लड़का के लिए भी यही डेफिनेशन है कि समय बहुत कम है. तो आपके लिए तो है ही. Anybody who is above 70 is enjoying a bonus, huh? आप ये मानते हो कि समय कम है? समय के लिए आप क्या बोलेंगे? समय है, ज्यादा है या कम है? गिव मी योर ओपिनियन. सब बोलेंगे कम है. Not because you are sitting here, I'm delivering something to you regarding this since last 15 minutes. ये प्रिंसिपल थॉट मन में रखना, तो you will always be focused on your dream, on your goal. And as I said, dream is as in a professional career, in a social career, and in a personal life, all three sectors of your existence. Then only you enjoy life. You tread that path. हर एक के लिए सब कुछ तो होना नामुमकिन है. So first is your dream and your goal, एक सपना. So I give you a lesson. Leaving this place, going back to your homes, do the first thing, take a pen in your hand and write something. After that goal that is decided, after that dream that you have decided, perseverance, energy behind it. As I said, Sachin faces 500 deliveries, used to face every day in the morning. He was asked, what if you have scored a century or double century on the previous day? Sachin said, even then, the next morning at 6, I'm at the nets. That makes him the god of cricket and the greatest batsman to walk the planet. That makes him 30,000 plus runs at the international level and 200 test matches. Unbelievable records. Perseverance and energy. Remember, the heights attained and kept by great personalities were never attained by southern flights. But they, while their companions slept, were toiling upwards at night. जब रात की चैन निंद्रा में सब सोते हैं, तब जो विनर्स होते हैं, वे लोग पुरुषार्थ करते थे. परसिवियरेंस एंड एनर्जी. भगवान ने सबको शक्ति दी है. वो शक्ति का पूरा यूज जीवन में हमें करना चाहिए. If you go back to heaven with your energy conserved, God is going to slap you. I gave you so much of amount of energy to work and express yourself. Why didn't you use it? Using your optimum energy during your entire human life is celebrating your existence.
and you must do it. दुनिया के सबसे धनाढ्य बिजनेसमैन है बिल गेट्स. उन्होंने पुस्तक लिखा है, अपना जीवन चरित्र लिखा है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट. और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, बिकॉज यू नो, perhaps you might not be knowing that he's a high school dropout. 8वीं कक्षा तक ही वे पढ़े हैं, 8th का भी एग्जाम नहीं दिए. He has not appeared for the exams of 8th standard. And recently in the same school, he was made a chief guest for a cultural program. और प्रिंसिपल ने कहा कि आप जो क्लास में बैठते थे वो पूरा बिल्डिंग रेनोवेट करना है, तो वी नीड लाइक अबाउट $200,000. बिल गेट्स ने अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि $1 million दे दो, जिस स्कूल में से उनको निकाला गया था. ये तो एक प्रसंग है. What I want to tell you is that he writes the mantra, the secret of his success in life, a Microsoft empire. He writes, now listen very carefully. The secret of my success is a culmination of 3 things. First, determination. Second, intense hard work. And third, acceptance of the ideas of others. These 3, he says, is the secret of my success. Intense hard work. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है. Everybody has to work hard. You know, there is a proverb in the North African jungle that every morning when the sun rises, the slowest deer has to at least run faster than the fastest lion to see the evening. And the slowest lion has to run faster than the fastest deer to see the evening. समझे आप? Then the writer puts, whether you are the deer or the lion, when the sun rises, you have to run. आप हिरण हैं या शेर हैं, जो भी हैं, लेकिन सूर्योदय हुआ आपको दौड़ना पड़ेगा. Whether you are the deer or the lion, when the sun rises, you must run. You have to run. They have to run in jungles and you have to run in concrete jungles, but you have to run. You have to run. So intense hard work, perseverance, tremendous amount of energy. The great musician Beethoven was once performing at the RCMH in New York, the Radio City Music Hall, perhaps among the top 3 most prestigious venues to perform. A 7-story gallery hall, auditorium, 7 layers. After the performance, a young fan, he ran up to him and said, "Sir, I also play piano like you." Beethoven was happy. "Sir, I want to ask you a question." Beethoven said, "Yes." "Sir, can someday I play like you?" Beethoven said, "Yes." "Sir, really? Can someday I can play like you?" Because Beethoven was the first person to play the piano with both the hands. And Beethoven said, "Yes." "Sir, how? Give me a good tip." And Beethoven said, "Tip is very simple. Very simple. Sir, please share with me the idea. Share with me the tip. If it's so simple, I'll definitely work on it. I want to perform like you one day in this RCMH in front of 6,000 audience." Again, Beethoven said, "The tip is very simple. Sir, please." And Beethoven said, just one line which has become famous. He said, 18 hours a day, 40 years, and you will play like me. रोज के 18 घंटा, 18 hours a day, 18 घंटे, 40 साल. 40 years, 18 hours a day. Do it, and then you will perform like me. सब कुछ यहीं से मिलता है.
थोड़ा अंदर से मिलता है, थोड़ा बाहर से मिलता है। अंदर तकदीर है, बाहर पसीना है। मिलता है सब यहीं से। थोड़ा अंदर से मिलता है, थोड़ा बाहर से मिलता है। अंदर हमारी तकदीर होती है और बाहर पसीना होता है। लेकिन बाहर का जो पसीना है ना, उससे अंदर की तकदीर खिलती है। डेस्टिनी गेट्स वाटर्ड बाय योर स्वेट। ओनली देन इट स्प्राउट्स आउट। तमिलनाडु में एक गांव में छोटा सा लड़का था। प्रसंग यूं बना कि गांव में एक ज्योतिष आया। आई एम टॉकिंग ऑफ डिकेड्स बैक। तो गांव वाले सब जाने लगे उनके पास। तो ये लड़का ने भी अपनी माता को कहा कि मॉम, somebody has come in the village and everybody is going to him and they are showing him their hands. उनकी माता समझ गई कि ये कोई ज्योतिष है। मॉम, लेट अस गो देयर। छोटे बच्चे की जीत थी। ये माता भी उनको लेके वहां चली। शी वाज स्टैंडिंग इन द क्यू। और ये ज्योतिष 2 रुपये लेके सबका भविष्य कहते थे। तो ये माता को भी उम्मीद थी, मेरा बच्चा है, 5 साल का है, उनकी हस्तरेखा में उनको दिखाओ। एंड इट वॉज व्हेन हर टर्न, शी रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर that can you see my little boy's right hand, right palm and tell me what is going to be in future. हर एक माता पिता तो उम्मीद तो है। The astrologer caught hold of the little boy's hand and looking into it, he put up an expression of utter disdain. माता ने कहा क्या? ये एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि सॉरी टू टेल यू, बट इनके हाथ में अभ्यास की रेखा नहीं है। माता को बहुत दुख लगा। इमीडिएटली टीयर्स फ्लोड आउट ऑफ हर आईज एंड सेड कि मेरा लड़का अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अभ्यास रेखा है नहीं। छोटा बच्चा था, 5 साल का, समझ सकता था। उसने उस एस्ट्रोलॉजर को पूछा कि अगर ये अभ्यास की रेखा होती तो कहां होती है। एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बताया होगा कि ये यहां से यहां जाती है। ठीक है। घर वो वापस गए। माता तो बहुत दुखी थे। घर में जाके माता कोई और कमरे में थी, कुछ काम कर रही थी। ये छोटे बच्चे ने किचन में जाके हाथ में नाइफ ली और एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया था कि यहां से यहां वो रेखा अभ्यास की जाती है, वहां वो नाइफ से उसने रेखा दौड़ी। खून बह गया। उसकी माता ने जब देखा तो चिल्लाने लगी, क्या किया तूने? द 5-year-old बॉय वॉज स्टेबल। उसने कहा, मम्मी, गॉड फॉरगॉट टू ड्रॉ दैट लाइन इन माई पाम, टुडे आई डू इट। भगवान भूल गए थे, आज मैंने दौड़ दी। Some medical, and then the little boy's charm, the little boy's aura, it did convince his mother that he is going to be something. ये छोटे लड़के ने अपने माता को बताया कि मॉम, not only will I study good, I'll go to Oxford to study. I'll go there to teach children. अब चिंता मत करना। वो छोटा लड़का ऑक्सफोर्ड गया, पढ़ा, वहां विजिटिंग फैकल्टी बना, कई बार भारत से ऑक्सफोर्ड गया। एंड देन दैट लिटिल बॉय वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Sweat waters your destiny. It sprouts out a big tree, fruits, and you enjoy. Celebrate your existence by your perseverance, by your energy. 8 घंटा अगर आपने काम नहीं किया जीवन में तो आपको खाने का या सोने का अधिकार नहीं है. If you are fully normal and fit,
टाइम वाइज अगर आप देखें टिल द एज ऑफ 60, इफ यू डोंट वर्क फेथफुली, prominently, honestly, for at least 8 hours a day, you don't have the right to sleep, you don't have the right to eat. आपको अधिकार नहीं है. Then you celebrate your existence. Ultimate satisfaction in life comes by two things: achievements at workplace and enjoying wonderful relationships. ये दो से ही व्यक्ति सुखी हो सकता है. इफ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस, ये प्रिंसिपल दो विचार हमेशा जीवन में रखना कि कार्य क्षेत्र में कुछ पाना है और संबंधों का आनंद लेना है. एंजॉइंग रिलेशनशिप्स एंड अचीवमेंट्स एट वर्क प्लेस आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ एब्सोल्यूट हैप्पीनेस इन योर ह्यूमन लाइफ. डू यू अग्री विथ मी और नॉट? कोई भी बात आप देखेंगे, ये दो बात में ही आ जाएगी. These are the principal thoughts. Rest everything is the supporting arena. So with perseverance, with tremendous amount of energy, हमारे गुरु थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जो अभी ब्रह्मलीन हुए एक वीक पहले. उनके जीवन में जो परसिवियरेंस, जो एनर्जी थी, जो पुरुषार्थ उन्होंने किया, अनबिलीवेबल, अद्भुत. उन्होंने अपने जीवन काल में, आपने यहां नागपुर में हमारा मंदिर देखा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड अवर टेम्पल एट नागपुर? यहां, हाँ, सभी. ऐसे छोटे मोटे 1300 कैंपसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बनाए हैं. 1300. ऐसा एक कैंपस फॉर सोशल सर्विस, फॉर अ सेल्फलेस कॉज करना, एडमिनिस्टर करना, मतलब उनको मैनेज करना लाइफ टाइम, फॉरगेट लाइफ टाइम, डिकेड्स और सेंचुरीज तक वो सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना इज नॉट अ जोक. परहैप्स वी कैन सेट अप थिंग्स, बट टू मेक इट रन फॉर अ फ्यू इयर्स एंड अ कपल ऑफ डिकेड्स, इट टेक्स अ टास्क. इसके अलावा उन्होंने 150 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई. अपने जीवन काल में प्रमुख स्वामी महाराज दुनिया के 60 देशों में 17,000 गांवों में घूमे हैं. 17,000 विलेजेस इन अ ह्यूमन लाइफ. इमेजिन. आज पृथ्वी पे 7 बिलियन की पॉपुलेशन है. एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पृथ्वी पे आज, even those living public lives, I challenge them, anybody who has visited 17,000 villages during his lifetime. आपको लगता है कोई होगा? प्रमुख स्वामी महाराज ने किया है. He has personally read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. He has personally visited, as we have come today here, he has personally visited more than 3.5 lakh homes, offices, shops or factories. He has met more than 2 million people personally. He used to meet 500 on an average per day for 45 years. Staggering world records, unbelievable world records. Beyond imagination world records. In one human life it is possible. हो सकता है. Perseverance, energy and the consciousness of time, as I'm telling you, since last about half an hour, 40 minutes. आपने टीवी शोज कहीं देखे होंगे, फिल्म्स भी कहीं देखी होगी. Imagine for example you have seen so far 100 films. मैं तो एक मिनिमम फिगर देता हूं. If you have watched 100 films, 100 into 300 hours you have spent sitting in front of the screen. Have you ever asked the question to yourself, what actually did you gain from it? Great personalities or the people who walk towards greatness, for them, work, hobby and entertainment, all three same. ये बहुत भारी वाक्य मैंने आपको कहा, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैनॉट बिलीव योर ईयर्स. आई रिपीट, जो महान व्यक्ति होते हैं,
या महानता की तरफ चलते हैं, उनके लिए वर्क, एंटरटेनमेंट एंड हॉबी, ऑल थ्री इज वन। हमारे लिए सब अलग अलग है। शाम को 6 बजते हैं, आज तो बहुत सुबह से 10 बजे से ऑफिस बैठा हूं, शाम को 6 बज गए, मूवी में जाना पड़ेगा। ये विचार, ये पद्धति और ये कार्य will not lead you to the realization of your dreams. You will not celebrate your existence. Try to make your work, hobby and entertainment the same. Just the change of work becomes your entertainment. Just the change of work can become your hobby. These people, they had this greatness and they enjoy. You celebrate your existence, as I said, dreaming, persevering, putting your energy into it. Even the modern day genetic scientists, they put in a research that only 25% of intelligence, ability and excellence are inherited. 75% of ability, इंटेलिजेंस एंड एक्सीलेंस कैन बी एक्वायर्ड। सो आप ये चिंता मत करना कि मैं पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान ने मुझे, या शायद मेरे नसीब में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ऐसा स्कोप नहीं मिल रहा है। जेनेटिक साइंसेस जैसे 75% ऑफ इट कैन बी एक्वायर्ड। आप पुरुषार्थ करो, चलते जाओ, होगा अच्छा। दैट इज हाउ यू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस। The third aspect of celebrating your existence is you design your day and you design your life in a way that you don't have a complaint from any sector. ऑफिस में मैनेजर खुश है, लेकिन घर में बीवी और बच्चे खुश नहीं हैं, तो you have not lived a balanced life and you are not celebrating your existence. Many a times I teach 8 plus 8 plus 8 system. Out of the 24 hours that you have, 8 hours is honest, ethical, hard work. Another 8 hours is sleep or rest. Third 8 hours are very important, where few people win and most of them lose. Third 8 hours is 3H and 3F. 3H is health, hygiene and hobby. 3F is family, friends and faith. इसकी कुछ बातें हम आगे करेंगे, लेकिन समय शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे एक तय कर लो समय कि वहां आपको ऑफिस से उठ जाना है और अपने परिवार के साथ वापस पहुंचना है। एक 30 सेकेंड्स की अच्छी स्पीच वीडियो नेट पे है, यूट्यूब पे आप देखना। ब्रायन डायसन थे, वर्ल्ड सीईओ थे कोका कोला के। उन्होंने एक बी स्कूल के कॉन्वोकेशन डे में, वहीं यूएस में ही, एक 30 सेकेंड की स्पीच दी है। वंडरफुल स्पीच, एंड ही हैज गिवन यू अ वेरी गुड मैसेज इन दिस 30 सेकेंड्स। उन्होंने ये कहा कि आप लोग सब एमबी होने वाले हो, देन यू विल वर्क इन कॉर्पोरेट्स another 30-40 years in corporate, and you will come to know that actually in life you are playing with 5 balls. 5 बॉल से आप जगलिंग करें। हम सर्कस पे देखते थे ना, कोई जोकर है, वो 3-4 बॉल से एक साथ खेलता था और एक भी बॉल को नीचे गिरने नहीं देता है। In life you are juggling with 5 balls. The first ball is the ball of work. Second ball is the ball of family. Third ball is the ball of health. Fourth ball is the ball of relationships. Fifth ball is the ball of spirit. Then he put the third sentence, that after 40 years of working, you would feel that the first ball, that is the ball of work, is made up of rubber and the rest 4 balls are made up of glass. The ball of work is made up of rubber. अगर आप एक अपॉर्चुनिटी चूक जाएंगे, अगर बॉल वो हाथ में से गिरा, वो रबर का है, वो वापस आपके पास आएगा। It will bounce back in your hands.
That means opportunities will come again. Don't sit till 8 p.m., 9 p.m. and 10 p.m. in your office. You don't owe everything upon this earth, and I don't think you'll be able to drink the whole sea of your profession. भारत में जितने गैस सिलेंडर्स बनाने वाले वो सबका ऑर्डर्स आप पे आ जाए तो क्या करेंगे आप यतीन? पूरे विश्व के जितने गैस सिलेंडर्स बनते हैं वो सबकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? और कर पाएंगे? नहीं. You cannot drink the whole sea of your profession. Limit yourself. और दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको सॉल्व करने हैं. हाँ या ना? Tell me yes or no. फिर भी we want to poke our nose everywhere. वो बारात निकलती है ना रोड से, आवाज आती है ना, तो अंदर से बाहर निकल के गैलरी में खड़ा हो जाता है. टाइम की कीमत नहीं है ना, गोल फिक्स नहीं है. 15 मिनट खड़ा रहता है, जहां तक बारात का आखिरी आदमी दिखाई देता है ना, वहां तक गैलरी में खड़ा रहता है. आप हंस रहे हो, मतलब ये बात तो सही है. हमको तो इसका ज्यादा अनुभव नहीं है, बल्कि कोई कुछ अनुभव नहीं है. आखिरी आदमी तब देखते रहते हो, और फिर अंदर आते हैं, परिवार में 1-2 लोग बैठे होते हैं, वहां के कमेंट करते हैं. किसी ने पूछा तो है ही नहीं. किसी ने पूछा तो है ही नहीं, फिर भी आके कमेंट देता है. दोनों जम नहीं रहे तो तेरे को जमाना है, और अगर नहीं जमा और दोनों के बीच कुछ बना, तेरी जिम्मेदारी. इफ समथिंग हैपन्स बिटवीन द टू, इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? दो में से एक आपके घर आने वाला. Unnecessary, we have wasted thousands of hours so far. Yes or no? Unnecessarily, we have wasted thousands of hours. Why would probably Hillary Clinton win over Donald Trump? Don't go into the details. जब जीत जाए तब देख लेना कि अभी ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है. क्योंकि वहां कुछ नया कायदा बना, वो नागपुर में जो 3 BHK में आप रह रहे हो उससे कोई रेलेवेंस है नहीं. मिशिगन किसने जीता, उटा किसने जीता, फ्लोरिडा किसने जीता, टेक्सास किसने जीता, उसमें ज्यादा डीप मत जाओ. Anybody who reads newspapers beyond 10 minutes is, आप अपने हिसाब से अपना नाम बना लो. Anybody who reads newspaper beyond 10 minutes doesn't care for time, doesn't care for his life, and actually is a fool. He doesn't know what he's doing. टाइम्स भी पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, हितवाद भी पढ़ते हैं, फिर नेबर में एक्शन कर देते हैं दोनों, है ना. यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. यू डोंट नो द प्रेशियसनेस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ. यू डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट इट. टेक केयर ऑफ इट, योर टाइम. कम बैक टू योर फैमिली. ब्रायन डायसन ने लिखा, रेस्ट 4 balls आर मेड अप ऑफ ग्लास. If by some occasion, if you lose it, it will fall on the ground, it will break. If not break, it will develop a crack. If not crack, at least it will not be the same shape again. So take care of these 4 balls, the ball of family, the ball of health, the ball of relationships, and the ball of spirit. वर्जिन अटलांटिक के सीईओ रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बस स्टॉप्स, अ बस कम्स एवरी 3 minutes. अपॉर्चुनिटी है, तक है, वो क्या है? बस स्टैंड है, और वहां बस हर 3 मिनट में एक बार आती है. तो अब चिंता मत करना, काम तो दूसरी बार भी मिलेगा, लेकिन गो बैक टू योर फैमिली. ब्रायन डायसन ने अंतिम सेंटेंस उस प्रवचन में कहा, so get to work on time, work effectively during your working hours, and get back to your family on time. This is celebrating your existence.
get to work on time, work effectively during your working hours, and get back to your family on time. This is the motto. He said, I practiced this for 40 years in my life, and I think that I am the happiest person upon this earth. महीने में 5 दिन आपको छुट्टी, घर बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, रात को 7:30 बजे के बाद ऑफिस में बैठने की छुट्टी. समझ सकते हैं, कभी काम होता है, इमरजेंसीज होती है, अर्जेंसीज भी होती है. ये मत सोचना कि मैं साधु और ऐसे ये बात कर रहा हूं थियरी. आई कम फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, द BAPS स्वामीनारायण संस्था, which is as big as Rotary or as big as Lions Club. मैंने बोला ना, 1300 ऐसे कैंपसेस हैं. We saints are directly involved in the administration and management of these campuses. बड़ौदा में हमारा मंदिर है, इतना ही बड़ा है. जस्ट अपोजिट द रोड ऑफ द टेम्पल वी हैव 100-bed मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल. यूरोप और अमेरिका में जो आप हॉस्पिटल देखेंगे, ऐसी हॉस्पिटल है हमारी, एंड रनिंग एट ओनली 30% ऑफ द कॉस्ट्स of all the medical services that you find in any other part of the city. Just besides it, we have a 200 students hostel where children going for pharmacy, medicine, engineering courses, they stay there. Behind that, we have a 1200 students residential English medium school. यहाँ भी हमारी बहुत बड़ी स्कूल है. I think how many students? 1700 students की हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ है. We saints, we are directly involved in the administration, the management of all these institutes. So we know what is work. We know what is work-life balance. We know what is dividing your time and actually adjusting your time and actually managing your time between all priorities and needs of life. It's not just I'm talking to you theoretically. So you must spend quality and quantity time with your family, that is celebrating your existence. If you are not alongside with your parents in the last days of their life, you have missed out not just a humble service to your parents, but you have missed out of your grading as a human being. Pramukh Sai Maharaj was once asked, why do old age homes exist in the society? And Pramukh Sai Maharaj spontaneously replied, because child care centers exist. Old age homes exist because child care centers exist. माता पिता को समय नहीं था, दोनों का करियर बनानी थी, तो बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख दिया. बच्चा ने बड़े होके वही कॉइन्स में पेमेंट किया. अब उसके पास समय नहीं है तो आपको ओल्ड एज होम्स में रख दिया. सिंपल. ही हैज पेड यू बैक इन योर ओन कॉइन्स. सो समय अपने परिवारजनों के लिए निकालना वो बहुत जरूरी है. Another, that is balancing your time and balancing your, that is time between your work and your family and your relationships, is celebrating your existence in life. Another good aspect of celebrating your existence, ये आपके attitudes है, आपके अभिगम है, आपकी विचारधारा है, आपके दृष्टिकोण है. प्रसंग तो आपके जीवन में कोई बना, परिस्थिति ऐसी कोई खड़ी हो गई, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपके जीवन में से चला गया, कोई काम आपको मिला, कोई काम आपको नहीं मिला, कोई टेंडर आपने भरे लेकिन वो पास हुए नहीं हुए, आपके मन में जो इच्छा थी उसके मुताबिक कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, जिस व्यक्तियों के साथ आपको संबंध रखना था वो रहा या नहीं रहा, कुछ भी जीवन में बना, उस वक्त आपके विचार क्या रहे, स्थिरता रही कि नहीं, अभिगम क्या रहा, दृष्टिकोण क्या रहा, that makes you celebrate your existence. सबसे ऊंचाई की बात तो
श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द का उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। लेकिन ऑन अ डे टू डे लेवल, डे टू डे बेसिस, some thoughts are very much essential to be steady in our minds and hearts to make us more stable. प्रमुख साई महाराज वॉज वंस इन न्यूयॉर्क। रूम बहुत छोटी थी। किसी ने कहा कि स्वामी ये रूम बहुत छोटी है जहां आप विराजमान हो। प्रमुख साई महाराज ने इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली कहा कि छोटी रूम अच्छी है, पावर कम यूज होता है। Just 1 week after that, Pramukh Sai Maharaj was in Toronto, Canada, and his residence was newly made and the room was spacious. वही व्यक्ति ने प्रमुख साई महाराज को कहा कि स्वामी ये बड़ा रूम है, ये अच्छा है। प्रमुख साई महाराज ने कहा हां, बड़ा रूम है, वो अच्छा है, ज्यादा लोग अंदर एक साथ बैठ सकते हैं। In 99% of the situations in your life, you must play the role of water taking the shape of the vessel. तो आप सुखी रहोगे। In 99% of the situations in life, you must become water. Take the shape of the vessel. पानी को बड़े टब में रखते हैं तो टब का शेप ले लेता है। छोटे से ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है। एक बाउल में रखते हैं तो बाउल का शेप ले लगता है। Only 1% of the situations in life are such that you need to put forward a force to make your work go through. 99% of the situations, especially in personal life and social life, forget the business life, और commercial life एक different life है, लेकिन personal और social life में 99% of the life is such that you need to adjust. Adjustment, acceptance, बहुत बड़े शब्द है। You will celebrate your existence, ये शब्द आप जीवन में रखेंगे तो। छोटी छोटी बातों में अपना स्टेबिलिटी गुमा मत देना। Don't allow your stability to destabilize you for smaller things, smaller happenings in life. अगर हम प्रमुख स्वामी महाराज के जगह पे होते तो हम बोलते यहां ये छोटी रूम है, बड़ी करनी चाहिए, और बड़ी होती तो बोलते कि ये है वो है। प्रमुख स्वामी महाराज ने किसी को कहा कि ये फार्गो कार जो आप यूज कर रहे हो बड़ी कार है, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपशुकन है क्योंकि पिछले 1 साल में इसका 3 बार एक्सीडेंट हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नो, इट्स अ गुड ओमेन, ये अपशुकन नहीं है, शुकन है ये कार। तो लोगों ने कहा क्यों? 3 बार एक्सीडेंट हुआ, कोई मरा नहीं, किसी को कुछ लगा नहीं। दृष्टिकोण, अभिगम। Why something is happening to me? If you keep on asking this question to yourself, you will be a distressed one. Anything happening to me is for my good and progress. Take it that way and you will celebrate your existence. मेरे जीवन में जो कुछ भी बन रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है, मेरी प्रगति के लिए है। You celebrate your existence. अस्तित्व का आनंद आएगा, जीवन में बहुत आनंद आएगा। किसी ने यहां पैट मारी, प्रशंसा, और यहां मारी तो जस्ट हाफ अ फीट अबव, दिस इज कॉल्ड अ पैट, दिस इज कॉल्ड अ स्लैप। एक्शन तो वही है, लेकिन पैट में आप खुश हो जाते हैं, स्लैप में दुखी हो जाते हैं। लेकिन इतना ही है कि यहां अच्छा काम किया और अब अच्छा करना है। यहां से क्या सीखना है? अच्छा करना है, सिंपल। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने कहा कि कहीं लोग आपका जीवन और आपका कार्य कम जानते हैं या कुछ मन में घृणा रखते हैं, तो आपके बारे में कभी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बात भी लिखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये लोग दे आर गिविंग अस वार्निंग दैट यू डोंट डू दिस इन फ्यूचर। हरकिशन मेहता ने प्रमुख स्वामी महाराज के इंटरव्यू लिया था और प्रमुख स्वामी महाराज को कहा था कि कोई आपकी टीका करे तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई हमको क्रिटिसाइज करे तो हम आंख बंद करके सोच लेते हैं कि जो टीका उन्होंने की है वो सही है। अगर सही है तो हम कुछ उसमें वी चेक आउट। एंड हरकिशन मेहता आस्क्ड इफ इट्स रॉन्ग then Pramukh Swami said, we don't go to fight with him. I pray that God inspires him with the right kind of thinking.
प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छा अभिगम सिखाते हैं। ये अभिगम, ये दृष्टिकोण, ये एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना छोटी छोटी बातों में दिन में 10 बार हम मुंह लटका के बैठ जाते हैं, है ना। अभिगम, जो कुछ भी बन रहा है, is for my good and for my progress. I tell you, if in today's talk, if you don't remember anything, take this one sentence with you in your hearts and minds. And that sentence is, everything that is happening in my life is happening for my good and for my progress. If I know how to look at it, how to judge it, and how to accept it. ये एक वाक्य घर लेके जाना. You will celebrate your existence till the last breath of your life. किसी ने आपके साथ संबंध रखा, अच्छा है. कोई आपकी मनपसंद व्यक्ति आपके जीवन में से चली गई, भगवान की इच्छा. प्रयत्न करना, 2 बार 3 बार संबंध सुधर जाए. फिर भी अगर वो व्यक्ति की इच्छा नहीं है, wish him good luck, do prayers for him, give him a big goodbye, turn your face and delete his number from the mobile. Simple. सुखी रहोगे. वरना जितनी बार मोबाइल स्क्रॉल करोगे और वो व्यक्ति का नाम आए, ये हो जाएगा. वो करने की जरूरत नहीं है. एनीथिंग हैपन्स फॉर गुड. जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है. भगवान हमारा दुश्मन तो नहीं है. जो हमारे तकदीर के गड़वैये हैं, he is not our enemy. Do you wish anything wrong for your children? Tell me yes or no. Then we are God's children. How would he wish something wrong for us? He is constantly doing good for us. He is constantly trying to help us. लेकिन हमारे पूर्व के कहीं कर्म हैं, वो कर्म भी डाइल्यूट करके थोड़ा फल हमें देते हैं. उसमें हम बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया. कुछ प्रगति के लिए, कुछ अच्छे के लिए. Put that mindset. If it doesn't enter, put it forcibly. Only then you will celebrate your existence. हम तो अगर कोई रिसेप्शन में गए हैं, पार्टी में गए हैं, तो वहां से वापस आके घर आके क्या चर्चा होती है देख लेना. इसने ये पहना था, ये नहीं पहना था, इसको ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए. वो मेरे सामने उसने देखा लेकिन फिर पास नहीं आए. मेरे सामने उन्होंने देखा लेकिन फिर मुंह फिरा दिया. यही चर्चा होती है ना. टेल मी यस और नो क्लियरली. इसलिए आप पार्टी में गए थे, इसलिए आप रिसेप्शन में गए थे. आप वहां आनंदित होने के लिए गए थे, और क्या होके आए? दुखी होके आए. इसने मेरे सामने देखा नहीं, वे मेरे पास आके नहीं बैठे. उसने वहां तक आए थे, हम लोग खड़े थे, लेकिन कुछ मेरे हाथ में प्लेट थी, फिर कुछ खाने का आग्रह नहीं किया. डोंट लिव विथ टू मच एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ. यू विल नॉट सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस. हमारी तकलीफ यह है, हमारा मन इतना कमजोर है कि कोई हमारे सामने नहीं देखे तो भी तकलीफ, कोई देखे तो भी तकलीफ. वो मेरे सामने क्यों देखता होगा? आंसर इज वेरी सिंपल. आंख है इसलिए देखता था. व्हाट इफ द कैट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्रॉसिंग योर पाथ? टेल मी एंड व्हाट इट इज व्हेन इट गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्रॉसिंग योर पाथ. बोले आप बोले. अब शुकन ये सब हम मानते हैं. एज यू आर गोइंग समवेयर, द कैट इज ऑल्सो गोइंग समवेयर. सिंपल. बहुत हम ज्यादा विचार कर लेते हैं छोटी छोटी बातों में, इसलिए डोंट सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस. थिंग्स हैपन, लेट देम हैपन. डोंट टेक इट टू सीरियसली. द थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ हैज ओनली 10% impact on you. 90% of the impact depends upon how you take it. जो कुछ भी आपके जीवन में बन रहा है ना, उसकी इंपैक्ट 10% ही है. आप कौन सी दृष्टि से उसके सामने देखते हो,
how you take it in your life, the impact is 90%. वो 90% में आपके पास चॉइस है. Don't give it intensity. Your response to it creates the intensity, and that it affects you. हमने देखा है प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भव्य सम्मान हुए हैं. कनाडा और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ था. अमेरिका में 40 से भी ज्यादा सिटीज की टू द सिटी प्रमुख स्वामी महाराज को दी गई है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 6 बार प्रमुख स्वामी महाराज का नाम है. बड़े बड़े सम्मान भी हमने देखे हैं, और कहीं अज्ञात लोगों ने उनका अपमान भी किया है. ऐसे भयंकर अपमान भी हमने देखे. उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज को हमने स्थिर देखा है. नॉट अ व्रिंकल ऑन हिज फेस हैज चेंज्ड. और हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के रिसेप्शन में जाते हैं, और आपका मूड अगर 1 मिनट में मुझे उतार देना है तो मैं उतार सकता हूं. पता है कैसे? पहले आप प्रॉमिस दे आप ये प्रयोग नहीं करेंगे, फिर मैं आपको बताऊं. एक आदमी को उनके पास भेजना है कि ये तो क्या पहन के आया इधर, इतना बोल के फिर वापस आ जाए. 5 मिनट के बाद दूसरे आदमी को भेजना कि दिस डजंट सिंपली सूट टू द ओकेजन. आई डोंट थिंक यू हैव पुट ऑन द राइट टाइप ऑफ क्लोथ्स. एटलीस्ट ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा है. 5 मिनट के बाद तीसरे आदमी को भेजना. व्हाट अ हॉरिबल थिंग दैट यू वांट टुडे. वो व्यक्ति पार्टी छोड़ के चला जाएगा. देखना मतलब प्रयोग मत करना. हमारे माइंड्स इतने मीन और चीप हैं. नाउ लेट मी पुट फॉरवर्ड अ वेरी क्लियर फैक्ट that we live according to people's opinions. We don't live according to our own life. हाँ या ना? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचते होंगे, ठीक है, समाज में है, मर्यादा की दृष्टिकोण से इसका विचार करना है, लेकिन उसके मुताबिक ही जीवन जीना है. फॉरगेट इट. ऑस्ट्रेलियन नर्स ब्रॉनी वेयर ने एक पुस्तक लिखा है, द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग. विश्व प्रसिद्ध बना यह पुस्तक. न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर्स लिस्ट में फॉर 60 वीक्स इट टॉप द लिस्ट, विच इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ये नर्स क्रिटिकली इल पेशेंट्स को केयर करती थी, और इसमें शी हैज पुट डाउन द एक्सपीरियंसेस ऑफ मोर देन 1000 पीपल अक्रॉस horizons, from a carpenter to a professional to a social worker to an MD or a chairman of a giant MNC. ये लोग जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, तब ब्रॉनीवेयर ये नर्स ने ट्रीटमेंट करते वक्त उनके पास एक फॉर्म भरवाया कि at this moment in your life, when you know that you are going to die because they are critically ill, when you know that when your relatives know that you are going to pass out, when the medical team taking care of you, they know that you are going to pass out, what exactly do you cherish in your life and what you regret in your life? उसमें से जो 5 कॉमन रिग्रेट्स थे, ये पुस्तक में लिखे हैं, द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग. उसमें पहला रिग्रेट क्या है पता है? Why did I work so much in my life? मतलब मैंने गधे की तरह इतना काम क्यों किया. दूसरा रिग्रेट है, I should have spent more time with my family and my friends who loved me and I loved them, near and dear ones. I should have spent more time with them. तीसरा रिग्रेट ये लिखा है जो भी बात मैंने की, कि I should have cultivated the bravery in my heart to live a life according to my choice and not the choice and opinions of the people around me. Unless and until you are not a social harassment, unless and until you are not offending anybody, live a life of your choice. Then you will celebrate your existence. You will enjoy your life. I've taken Diksha since last 25 years, after finishing my engineering in 1991.
And since 25 years I've been wearing the same colored clothes and the same style. You wear it for 1 week and then we'll talk what it happens to your mind. 1 वीक तक एक ही कलर के कपड़े आप पहनो तो सही एक बार. We eat in wooden bowls, mixing everything and putting water into it. I don't have a family. I don't have a bank account. I don't wear ornaments. This is the norm and discipline of the Swaminarayan Sampradaya. I have not touched money. And we are brahmacharis. और ये सब आपके पास है. You have a bank account, you have gold, you have ornaments, you have the best type of clothes, you have the branded items that you wear. ये हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरे चेहरे पे कुछ दुख लगता है आपको? लगता है कुछ? We are celebrating our existence because you know what you are living. You have a clear dream, clear goal, and the path you are walking, a path that you select in your life, and you enjoy your existence. As simple as that. वरना आप सब तो बुद्धिशाली हो, सांसारिक हो, बिजनेस करते हो. Why should you call a tyagi to talk to you? Why should you call a saint, a monk to talk to you? Because work can be taught by somebody. Academics can be taught by somebody. Money making can be taught by somebody. Life can only be taught by those who have lived life. So this is life. So attitudes, आपके जो अभिगम हैं, आपके जो दृष्टिकोण हैं, 12:15 हो गए. In 5 minutes I'll finish. Attitudes, अभिगम जो दृष्टिकोण हैं, वो हमेशा सही रखना. और सही में इतना ही प्लेटफॉर्म है. Whatever happens in my life happens for my good and my progress. Simple. That will give you ultimate stability in life. और जो आखिरी बात है, वो faith in God. भगवान में श्रद्धा रखना कि भगवान ये जगत के कर्ता हर्ता है, मेरे पिता है, मेरी माता है, और इनकी कृपा से मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा. उनके आशीर्वाद ही होंगे. A good day, enjoy. A bad day, learn something. And a worst day in your life is an experience. तीनों चाहिए ना? What does a plate of a full dinner contain? सब रस आ जाते हैं ना? If you give you a full plate of sweets, will you be able to enjoy your meal? You need all tastes. In the same way, life में सब टेस्ट चाहिए. आनंद भी चाहिए, सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, कड़वा अनुभव भी चाहिए, पैट भी चाहिए, स्लैप भी चाहिए. That will make you a complete human being. So when there is rejections and failures in life, take it positively. आपको पता है अभी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में टॉप एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट में इंटरव्यू में सबसे पहला और आखिरी मतलब एक ही प्रश्न क्या पूछते हैं? क्योंकि ये सब पोस्ट होती है ना, वहां तनख्वाह तो होती है 20 करोड़ पर एनम, 30 करोड़ पर एनम, 50 करोड़ पर एनम. आपको जान के शायद ताजुब होगा कि पृथ्वी पे 10,000 लोग ऐसे हैं प्रोफेशनल्स जिनकी तनख्वाह 100 करोड़ से ज्यादा है. दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर कर्मचारी नंबर 1, द सीईओज, द एमडीज और द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. उनका जो इंटरव्यू होता है तब एक ही प्रश्न पूछा जाता है. अभी एक नया ट्रेंड खुला है और वो प्रश्न क्या है? क्योंकि he has already got an experience of like 20 years working at the top corporate level, isn't it? And he has managed 25,000 crore rupees, 50,000 crore rupees, 1 lakh crore rupees every year. So he has not to be asked about administration, about management, about human resources, nothing. प्रोजेक्ट प्लानिंग उनको पूछना नहीं है. तो उनको क्या पूछते हैं इंटरव्यू में? आपके जीवन में कोई बड़ा सेटबैक आया है? आपके प्रोफेशनल करियर में कोई बड़ा फेलियर आया है?
कोई सीवियर डिप्रेशन में आप चले गए हो कोई परिस्थिति में, वो परिस्थिति का आप वर्णन करें। उस वक्त आपने विचार क्या रखे, भावनाएं क्या रखी, और किस प्रकार से अपना उस दिनों के वक्त आपने समय कैसे पसार किया, वो आप डिस्क्राइब करें। हाउ डिड यू मीट, रादर हाउ डिड यू ग्रीट फेलियर्स एंड सेटबैक्स इन योर लाइफ, वो आप बताएं। उस वक्त अगर आप में स्ट्रेंथ रही, करेज रही, कॉन्फिडेंस रहा, एटीट्यूड सही रहे, आप जीवन जीत गए। अच्छी परिस्थिति में तो सब कोई कूदते हैं और आनंदित होते हैं। गंभीर परिस्थिति जब आ गई, चलो आनंदित तो नहीं होते हैं, स्थिर तो रह सकते हैं ना। यही पूछा जाता है। तो ये स्थिरता भगवान में श्रद्धा से आती है। मंदिर में जाते हो, आरती के बाद कोई हाथ में प्रसाद देता है, वो भी प्रसाद है। और भगवान ने निर्णय लिया कि आपकी धर्म पत्नी को 40 साल की उम्र में कैंसर हो गया और मृत्यु हो गई, वो भी प्रसाद है। Now I'm talking of the highest level of stability in life. आपका 22 साल का लड़का हार्वर्ड में एडमिशन मिला एमबीए में, 2 साल एमबीए करके with flying colors he passed out, he came back to your house, he got a wonderful job, and after 2 years at the age of 26, he met a car accident and he passed away. हार्वर्ड में एडमिशन मिला था, वो भगवान की इच्छा थी। 26 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, भगवान की इच्छा। आप ये बोलेंगे कि स्वामी आप साधु हैं, आप तो ये बात आसानी से कर सकते हैं, हम सांसारिक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन कठिन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये समझदारी रखनी बहुत जरूरी है, वरना यू विल लूज योर लाइफ। फॉरगेट सेलिब्रेटिंग। हमने देखे, कहीं गृहस्थ को देखा है, हम परिचय में है, 5-5, 10-10, 15-15 साल के बाद भी स्टेबल नहीं हुए हैं। उनको आप याद कराओ, आपका रोने लगते हैं 15 साल के बाद। अभी ये मृत्यु लोग है, सबको एक दिन जाना है। सो दैट फेथ इन गॉड, इट एक्चुअली स्टेबिलाइजेज यू। दैट फेथ इन गॉड, इट एक्चुअली स्टेबिलाइजेज। कोई भी परिस्थिति में। तुकाराम थे, भगवान में बहुत श्रद्धा थी, भगवान के बड़े भक्त थे। गांव वालों ने एक बार तय किया कि तुकाराम का हम ऐसा अपमान करें कि वे गांव छोड़ के चले जाए, क्योंकि गांव में युवाओं को व्यसन मुक्त करते हैं, कहीं लोगों को, हम लोग साथ में बैठे जुआ खेलते हैं तो वो निषेध करके सुधार देते हैं, इसलिए गांव को बिगाड़ते हैं तुकाराम। तो सबने तुकाराम को गधे पे बिठाया, उल्टा बिठाया, गधे की पूंछ हाथ में दी, ऑल हिज हेयर्स शेवन, और उस पे चूना लगाया और गले में ब्रिंजॉल का एक हार डाला और गांव में घुमाया। तुकाराम की पत्नी इतनी डिप्रेस हो गई, देखा कि मेरे पति का ये अपमान, उन्होंने तो ये सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लूं। पूरे गांव में घूमकर जब तुकाराम वापस घर आए, गधे पे से उतरे, हंसते मुंह घर में अंदर आए, और उनके पत्नी ने कहा कि क्या ऐसा अपमान, हमको गांव छोड़ के जाना है? मैं तो समझती हूं मैं सुसाइड कर लूं। तुकाराम ने कहा उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। उनकी पत्नी ने कहा क्या, सब कुछ तो गलत हुआ है। तुकाराम ने कहा देखो, जब हमारी शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी, प्रोसेशन नहीं निकला था, आज निकला। सी द पॉजिटिविटी। I was talking of this example to like about 1,000 professionals at the Hyderabad Management Association. I told them, in a balance, if you put all the works of modern day research, all the books on positivity, positive thinking, written by modern day authors and thinkers on one pan of the balance, और दूसरे पैन में सिर्फ ये तुकाराम का प्रसंग रखो, वो झुक जाएगा। इतनी ताकत है ये प्रसंग में। तो तुकाराम ने कहा कि जब शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी, हम लोग बहुत गरीब थे, ऐसे ही शादी कर ली थी, तो आज गांव वालों ने इकट्ठे होके बारात निकाली, प्रोसेशन।
तू इसको गधा देखती है, मैं तो घोड़ा देखता हूं। शानदार, पूरा गांव NFOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, हम गरीब हैं, 6 महीने से बाल कटवाए नहीं थे, पैसे नहीं थे, इन्होंने कटवा दिए और ऐसे काटे, अब 6 महीने तक चिंता नहीं, पूरा शेव कर दिया। फिर उन्होंने यहां चूना लगाया था, अच्छा है, डैंड्रफ नहीं होगा, एंटीसेप्टिक हो गया। और ये बैंगन का हार पहनाया है, ये निकाल। 1 वीक तक, पिछले 7 दिन से हमने कुछ वेजिटेबल नहीं खाया। अब ये 7 दिन तक हमारा दोनों के लिए चला। दरवाजा बंद कर, आनंद कर, पका रसोई, खाएंगे, सो जाएंगे। दिस कम्स बाय फेथ इन गॉड। तुकाराम को यह भगवान में श्रद्धा थी कि जो कुछ भी बन रहा है उसमें अच्छा ही सोचना, क्योंकि बुरा सोचने के लिए टाइम नहीं है। दिस इज 70 और 80 ईयर इनिंग्स। उसमें से कितना हुआ दिलीप भाई? कितना हुआ? ज्यादा चले गए, कम बचे। डिप्लोमेटिक आंसर। ज्यादा चले गए हैं, कम बचे हैं, डिप्लोमेटिक आंसर। I tell you, life is too short. In life, when you don't have time for love, I don't know why people are finding so much time for hatred. प्रेम करने का समय जीवन में कम है, तो घृणा करने का समय लोग कहां से निकाल देते हैं वो पता नहीं है। तो तुकाराम ने ये भगवान में श्रद्धा रखी कि जो कुछ भी बन रहा है भगवान की इच्छा से बन रहा है, तो पूर्ण श्रद्धा रही और जीवन में शांति रही। तो ये भगवान को रोज प्रार्थना करना, अपनी स्थिरता के लिए और अपने संबंधी जन मित्रों के लिए भी, उनका भी अच्छा हो। हमारे गुरु योगी जी महाराज बोलते हैं, भगवान सबका भला करे। क्रेडिट ले लो, रॉयल्टी ले लो पुण्य की, और वैसे भी आप किसी का बुरा इच्छोगे, उसका तो बुरा जब होगा न होगा वो अलग बात है। यू आर स्पॉइलिंग योर इंटरनल एटमॉस्फियर। यस और नो? किसी का बुरा सोचने से यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग योर इंटरनल एटमॉस्फियर। जहां हेवन क्रिएट करना है वहां आप हेल क्रिएट कर रहे हो, है कि नहीं? दिस इज सेलिब्रेटिंग योर एग्जिस्टेंस। सो ये थोड़ी बातें हैं, अगेन जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, एक सपना लिखना, एक ड्रीम क्रिएट करना, पुट योर परसिवियरेंस, पुट योर एनर्जी इनटू इट। थर्ड थिंग इज, take care of your time, a good work-life balance, spend ample amount of time with your family, then live a life full of confidence with proper kind of attitudes. Take everything positive in your life. Whatever happens in my life happens for my good, happens for my progress. Anything happening in my life is always for my good. Take it, that attitude in your life, and put a mindset, if even forcibly, put it forcibly in your mind, that everything is happening for my good and for my progress, and ultimately God is my creator, is my father, he is my destiny creator. Whatever he has destined in my life is for my good, it is his blessings. Let things happen. 10% impact of things happening, 90% of it is how you take it. जो भी प्रसंग जीवन में बना, स्थिरता से एक्सेप्ट करना। Acceptance of everything is a big stress reliever in life. Acceptance of everything is a big stress reliever. So ये थोड़े विचार जीवन में साथ में रखेंगे, बार बार दृढ़ता करेंगे, you will be able to celebrate your existence. My all prayers for all of you today, for all your family members, all your near and dear ones, that they, with this thought process and this way of life, they celebrate their existence. May my Guru Pramukh Swami Maharaj and Pujya Mahant Swami Maharaj bless you all. Thank you very much.